Hello friends, welcome to Nike tutorial. Today we are going to solve SSC Board 10th Standard 4th lesson, that is Geometrical Constructions. Let us solve exercise 4.1. The first question is, triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is equal to 5.5 cm, BC is equal to 6 cm, CA is equal to 4.5 cm. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is 5 upon 4. This instruction I have taken down in the next slide. It is given AB is equal to 5.5, BC is equal to 6 cm and AC is equal to 4.5 cm. Solution: triangle ABC is similar to triangle LMN. Okay. First what we need to do is we have to construct or draw rough diagram. देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC मैंने रफली ड्रॉ किया है, रफ फिगर बनाया है और LMN, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमें पता करना है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता है, ABC ट्रायंगल का डायमेंशंस पता है, राइट। AB कितना है 5.5, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, AC कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने ड्रॉ किया है रफ डायग्राम, राइट। अब देखो हमें क्या दिया है, BC अपॉन MN इज इक्वल टू, देखिए BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 अपॉन 4, राइट। We know when triangle ABC is similar to triangle LMN, we can write by the property of similar triangle AB upon LM equals to BC upon MN is equal to AC upon LN. Now AB is what we have, and when we have given BC upon MN is equal to 5 upon 4, right. Then we can write here in place of AB, write down 5.5 here. I am writing this one, 5.5 upon LM is equal to BC is given 6 centimeter upon MN, AC is given 4.5 upon LN. So BC upon MN we have 5 upon 4. See, all the ratios are equal to 5 upon 4 because the two triangles are similar. Now we can find out easily the dimensions of triangle LMN. Very simple. What I'll do, see here, I'll take, see, each ratio is equal to 5 upon 4. So I am taking this ratio. Listen here, this and this. So this ratio is equal to 5 upon 4, right? First one I am taking 5.5 upon LM equals to 5 upon 4. So now cross multiply. LM is equal to 5.5 into 4. This 5 into LM है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो किधर जाएगा, डिवीजन में. This you know, and you can see my previous videos, you will find out how to simplify. So 5 1 जा पॉइंट आएगा 1 जा, so 11 4 जा 44, that means 4.4. हमको वैल्यू LM का मिला, कितना मिला
4.4, राइट। अभी क्या करना है, मैं दूसरा रेशियो लेता हूं, अभी इसको मैं मिटा देता हूं। आई एम टेकिंग डिफरेंट रेशियो। अब कौन सा लिखो, देखो एवरी वैल्यू ऑफ द साइड्स वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। दूसरे ट्रायंगल का वैल्यू हमको पता करना है। अब ये दोनों मैं रिलेशंस को इस्तेमाल करता हूँ। सेकेंड क्या आएगा मेरा, 6/mn, बहुत आसान है, तो 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 6 into 4/5. So mn equals to 6 4 the 24/5। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा। सो mn हमको कितना मिला, mn हमें मिला 4.8, है ना। यहाँ पे mn की जगह 4.8 लिखते हैं, सेंटीमीटर। हाँ, ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर लिखो। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट अभी कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे, नाउ यू नो थर्ड रेशियो आई एम टेकिंग, राइट। सो कौन सा है, लुक हियर, दिस third ratio I am using. So you can write over here 4.5/ln is equal to 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, so this equation becomes 4.5 into 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, अपॉन 5। तो ln equals to, देखो इधर 5 1 जा 5 9 जा 45 ना, तो 9 4 जा 36, that is 3.6 centimeter. So we got all the values of the second triangle. This is the easy sum that we can see here. अभी रिजल्ट क्या मिला हमको, दूसरे ट्रायंगल का ऑल द डायमेंशंस भी ऑब्टेन्ड। अब आसान है, ठीक है। देखो दूसरे ट्रायंगल का मैंने जो हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी ड्रॉ करना आसान है। पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। वेरी सिंपल, हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल ABC। पहले क्या लेंगे, BC, ठीक है ना। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। लुक हियर, BC यू कैन टेक हियर, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर, राइट। AB कितना है, AB इज 5.5, 5.5। देखो मेजरमेंट आ गया, B पे रखना है, आर्क बनाएंगे, देन AC 4.5, C पे रखना है, देन ठीक है। नाउ join AB and AC, okay, name it ABC. BC is 6 centimeter, AB is 5.5 centimeter, and AC is 4.5 centimeter, right। Already we do have the dimensions. क्या प्रॉब्लम है फिर, क्या प्रॉब्लम है, स्केल लेते हैं। पहले mn को बनाना है, mn 4.8 है, बहुत सिंपल है।
ओके 4.8 मैंने लिया। अब हम लेंगे LM 4.4, LM 4.4, यस LM 4.4। आर्क बनाइए ऐसा, इसको ठीक करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे। 3.6 लेना है, 3.6 आ गया 3.6। इसको ठीक पॉइंट पे रखिएगा बराबर से। रोटेटर को ऐसा रोटेट करो, ठीक है, और उसको ज्वाइन करो। वेरी सिंपल है ना। एसएससी में कंस्ट्रक्शन लेसन बहुत आसान है। LMN नाम देते हैं। दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। I hope you understood. Dear friends, now we will solve second question of 4.2. Triangle PQR is similar to triangle LTR, right? In triangle PQR, PQ is 4.2, QR is 5.4 centimeter, PR is 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is 3 upon 4. The information given here are written in this page. You can see over here. This is quite different than the earlier one. Dimensions are given in centimeters, हाँ, हर जगह सेंटीमीटर लिखा है. So triangle PQR is similar to triangle LTR. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है हमको, that is इधर देखिए, इधर भी R है, इधर भी R है, मतलब दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है R। और दूसरी चीज PQ अपॉन LT, देखो PQ किसका पार्ट है, PQR ट्रायंगल का पार्ट, और LT किसका पार्ट है, ट्रायंगल LTR का पार्ट। तो PQ बड़ा है या LT बड़ा है, सी कंपेयर करो, LT बड़ा है और PQ छोटा है, मतलब ट्रायंगल LTR बड़ा रहेगा। तो मैंने बड़ा ट्रायंगल इधर यहाँ पे देखिएगा, LTR बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया है और PQR छोटा, और दोनों ट्रायंगल का R कॉमन वर्टेक्स है और दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर होगा मतलब एंगल इक्वल होंगे। एंगल कब इक्वल होंगे इन दोनों ट्रायंगल का, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। इसके लिए पैरेलल निकालना जरूरी है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहला स्मॉल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो हमें डायमेंशंस ऑलरेडी पता है। डायमेंशन जब हमको दिया गया है तो उसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, आरक्यू, रफ डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाँ वो जरूरी है। तो आरक्यू कितना है, यहाँ पर ड्रॉ करता है इसे। ओके, आरक्यू इज गिवन 5.4 ना, 5.4 कुठं आला, तिकडे आला 5.4 म्हणजे इथे, ठीक आहे। आणि PR किती आहे, PR देखेंगे, PR 4.8 है, PR 4.8 देखो। तो यहां से हम आर्क खींचेंगे 4.8 वाला, ठीक है। और PQ इज गिवन, कितना दिया है PQ 4.2, ओके। 4.2 क्या करना है, आर्क बनाना है, ठीक है।
will join these points. This is PQ and this is PR. लिखते हैं PQR, यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज 5.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.2 सेंटीमीटर हमने बनाया। नेक्स्ट क्या करना है, जहां पे सी आर वहां पे आएगा ना, मैं रफ डायग्राम कैसे बनाए देखो, PQR वैसा ही नाम देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, नाम कहीं भी दे दो मगर उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो कॉमन वर्टेक्स है ना आर के यहां से एक एनी एंगल मतलब नॉर्मली 30 डिग्री या 40 डिग्री का एंगल ऐसा मुझे खींचना है, राइट। और उसके चीयर 3/4 है ना, 3/4 है तो 4 उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो आपने लाइन ड्रॉ की है 4 इक्वल पार्ट्स करो। कैसे करेंगे, वी हैव टूल ओवर हियर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 and 4 राइट। देन इसको नाम देते हैं R1, R2, R3 एंड R4। देखो PQ अपॉन LT कितना है, PQ अपॉन LT इज 3/4, सो 3 पे मतलब R3 पे जो पॉइंट है, अंडरस्टूड, तीसरा जो डिवीजन है उसका R3 पे जो पॉइंट है वहां से हमको PQ को जोड़ना है, ज्वाइन दिस। यहाँ पे अगर 5 रहता तो 5 के पॉइंट से हम ये करते हैं, डिपेंड करता है, यानी यहाँ नंबर क्या दिया है, क्या वैल्यू दिया है, 3/4 है तो PQ का हम क्या करेंगे, 3 का वैल्यू दिया है तो R3 से हम इसको Q को जोड़ेंगे और R4 से 4 है ना, R4 से हम लोग इसको पैरेलल लाइन खींचते हैं। इसको पैरेलल लाइन खींचना इंपॉर्टेंट है, देखो इधर पैरेलल है ना, सेम थिंग आई एम डूइंग। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट यू ड्रॉ दिस, इसको थोड़ा फर्दर इसको एक्सटेंड करो, दिस लाइन यू हैव, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड करते हैं इसी तरह से, इस लाइन को भी एक्सटेंड करना है, करो एक्सटेंड, ठीक है। नाउ R4 से दिस ये QR3 जो है ना, ये लाइन को पैरेलल खींचते हैं। कैसे करेंगे पैरेलल, इसको एंगल बना के भी आप कर सकते हो या सेट स्क्वायर इस्तेमाल कर भी कर सकते हो। देखो यू कैन सी दिस इज पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, देखो ये पैरेलल नहीं है, आप समझ सकते हो है ना, पैरेलल, दोनों का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। इस लाइन पे जो पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ से PQ को पैरेलल लाइन खींचिए, बहुत सिंपल है। देखो ट्रायल एंड एरर के, ये तो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, इधर थोड़ा हल्का सा एडजस्ट कर लो, अंडरस्टूड। So then give the name for this. This is your new triangle LTR. ऐसे करना है।
अगर आप इसका मेजरमेंट देखोगे ना, आप इसका मेजरमेंट देखोगे, किसका, PQ और LT का मेजरमेंट देखोगे ना, वो 3/4 ही आएगा। PQ एंड LT का रेशियो जो है वो 3/4 ही आएगा। यू ट्राई इट आउट योरसेल्फ। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल RST is similar to triangle XYZ. In triangle RST, RS equals to 4.5 centimeter. Angle RST is 40 degree. ST is 5.7 centimeter. Construct triangle RST and triangle XYZ such that RS upon XY is 3/5. All the information is written over here. Let us see. First you have to draw the rough diagram. Okay. So RST is given and we all know the dimensions. So we have to find out here XY and YZ so that we can easily draw the figure. Right? Now, when the two triangles are similar, we know that the ratio of their corresponding sides are proportional. तो हमें पता है RS upon XY, ST upon YZ, RT upon XZ is 3/5. क्योंकि RS upon XY 3/5 दिया है, all the ratios will be equal. तो हमें पता क्या करना है, XY पता करना है। XY कहाँ पे है, यहाँ पे। तो I'll use that relation. इसको हम इस्तेमाल करते हैं RS upon XY equals to 3/5, है ना। This relation and this relation, है ना, this and this. तो RS कितना दिया है, you can say 4.5 है। So you can write 4.5 upon XY is equal to 3/5. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा XY is equal to 4.5 into 5/3. Therefore XY equals to, this can be easily cancelled by 3. 3 1s are 3 5s are, so 15 5s are 45, right? That is 4.5 centimeter. ये पहला वैल्यू मिला। Now we'll go for second value, right? Second value को ढूंढते हैं। Now I'll use this and this. What I need, YZ मेरे को चाहिए ना, so ST upon YZ is equal to 3/5. This ratio I am using here. तो कैसे होगा, ST upon YZ is equal to 3/5 and ST we are given, that is 5.7 upon YZ is equal to 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद YZ is equal to 5.7 into 5/3. This can be cancelled by 3, right? 3 1s are 3 1s are 3 9s are. So YZ is equal to 19 5 are 95. That is 9.5 centimeter. You write it here. XY कितना मिला, 4.5 centimeter. YZ कितना मिला, 9.5 centimeter. Right? When we obtain all the dimensions of the triangle, मतलब required dimensions, we can solve them very easily. क्या मिला है हमको देखना है इधर, है ना। तो सॉल्व करते हैं। 5.7 पहला क्या लेंगे हम लोग, 5.7 लेंगे, बराबर। ST 5.7. Okay, we have obtained the values. Now we will solve. Draw that construction. पहले क्या करना है, ST 5.7. ST 5.7 कुठे आला, इकडे 5.7 घेतला। RS किती घ्यायचं, 4.5. 4.5 का आर्क लेते हैं, यस पे रखते हैं और आर्क बनाना। नाउ और एंगल कितना है,
40 डिग्री, एंगल 40 डिग्री बनाएंगे। या पहले एंगल बनाओ, उसके बाद आप आर्क खींच सकते हैं, व्हाटएवर। So this is our angle 40, right? Now we can join this right over there. ST is 5.7 centimeter and RS 4.5 centimeter, and then angle is 40 degree. Now similar triangle we are drawing, and we have the dimensions over here. Take the measurement of YZ, that is 9.5, right? Then angle, see this way, you can take angle also first. So it is same, because similar triangle, that means angle will be same, na? Corresponding angle will be same. So this is somewhat 40. Then draw a line. Okay, and XY we have 7.5. XY 7.5. So take arc of length 7.5 and just intersect it and join the point where arc is intersecting with the line of angle, and you can name it X, Y and Z. This is 9.5 centimeter, the angle is 40 degree, and this is 7.5 centimeter. Very easy. I hope you understood this. We'll go for next problem, that is last problem of this exercise. The question is given: triangle AMT is similar to triangle AHE. In triangle AMT, AM is 6.3, angle TAM is 50, AT is 5.6 centimeter, AM upon AH is equal to 7 upon 5. Construct AHE. The information is written down here, and we have drawn a rough diagram. See here. Why the diagram is like this, figure is like this? Because we do have same vertex A in AMT and AHE. Both the triangle have same vertex, and one is bigger and one is smaller. तो कैसे पता चलेगा? AM upon AH. AM किसका पार्ट है? AMT का, वो 7 है. AH किसका पार्ट है? AHE का, वो 5 है. सो बड़ा कौन सा ट्रायंगल होगा? AMT. तो मैंने बड़ा ट्रायंगल AMT बनाया है, और बड़े ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, डायमेंशंस. सो अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते हैं. पहला AM बना लेते हैं. AM is given 6.3, somewhere here 6.3, right? Now I'll take angle. एंगल कितना बनाना है? 50. एंगल 50 यहाँ पे आएगा, उसको ज्वाइन करते हैं. ये अपना एंगल AMT बन गया, और 5.6 85.6 लेना है. 85.6 लेते हैं. 5.6 somewhere here. उसका आर्क बनाएंगे of arc length 5.6, right? Now join this. ये अपना हो गया AMT. उसको नाम देते हैं AMT, and this angle is 50. Now, as we have done earlier, that we have to take a line from common vertex.
कितना भी एंगल ले सकते हैं, मगर 30 या 40 डिग्री का एंगल ले लो। सो हाउ मेनी डिविजन्स वी हैव टू मेक? 7 डिविजन्स। तो 7 डिविजन्स लेते हैं हम लोग, इक्वल पार्ट्स। हाँ, तो छोटा लेते हैं, 7 डिविजन्स तक जाना है। नाउ टर्न दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, this is fourth, this is fifth, this is sixth, and last one 7 इक्वल पार्ट्स में हमने बनाया। नाम दो उसको, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7 है ना। AH का वैल्यू कितना है? 5 है। सो फिफ्थ पोजीशन जो है इसका, यहाँ से आपको क्या करना है? टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम फिफ्थ पार्ट A5, 7th पार्ट से पहले बनाना है। एक सेकेंड, ना सॉरी, 7 से इसको मिलाना है, ये बड़ा है ना, 7 पार्ट से इसको मिलाना है और 5th पार्ट से उसको पैरेलल निकालना है। ओके, तो ठीक लेते हैं बराबर से। दिस इज व्हाट पैरेलल साइड इज। लग रहा है ना, पैरेलल लग रहा है। एंड फ्रॉम हियर टू पैरेलल, TM को पैरेलल निकालना है। ओके, सो यू कैन नेम इट नाउ। दिस इज H, this is E. Okay, in this way we have solved the exercise 4.1. I hope you understood this. Quite easy. Thank you.